This paper is a feedback, not a verdict, so learn from it and try to improve. Hello everyone, I'm Rahul Gujral. Welcome to the second part of the BST paper discussion of the 2024 CUET exam, and we have already covered the first half, यानी the first 25 questions हमारे हो चुके हैं, पहले 25 questions. Now we have to discuss the question number 26 to question number 50 today. So I hope everybody is damn ready. So without any further delay, let us open the paper and let us start with the discussion with the discussion of the paper and the question number 26. So 26 मैंने आपको करने को दिया था and most of you have answered correctly. So that is a very great thing. But yes, let us start from the 26th. So if you will see the paper, here it is. Okay. So let us open the question number 26. Jaldi se. Okay. We are here. So you can see that when you talk about the 26th, so it told you that the formal organization can be better understood by a study of its features, which are follows. So which of the following options are correct? यानी कि इनमें से फॉर्मल के बारे में क्या क्या सही लिखा है? What is true about the formal? They're asking that. So whatever is false, we have to eliminate. Yes or no? You can see it specifies the relationship among various job positions and the nature of their interrelationship, clarifies who has to report to whom. So yes, that is true. It tells you about that. So A should be in the answer. So it means 4 cannot be the answer. क्योंकि 4 में A है ही नहीं, but A आंसर में होना चाहिए. Yes or no? It is a means to achieve the objectives specified in the plans as it lays down rules procedures essential for their achievement. ये आपको means बताता है? Yes, बिल्कुल बताता है. तो B भी होना चाहिए आंसर में. A B है. Third, interdependent channels of communication without specific direction of flow of information are developed by group members. क्या ग्रुप मेंबर अपने आप में ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं? नहीं, वो इनफॉर्मल करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट. सो सी कैनॉट बी इन द आंसर. दिस कैनॉट बी द आंसर. दिस कैनॉट बी द आंसर. हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. So you can see A, B and D. What is D? It is deliberately designed by the top management. That is the key line. जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि इसको डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है. सो दैट इज क्वेश्चन 27. 26th answer is 1. So let us move to the question number 27. The informal organization offers many benefits. Important among them are given below. Prescribed lines of communications are not followed. अच्छा, यहाँ पे भी चूज करेक्ट करना है हमें. किसके बारे में? अब इनफॉर्मल के बारे में. एक फॉर्मल हो गया, अब इनफॉर्मल भी देख लो. प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस आर नॉट फॉलोड. तो यस, इनफॉर्मल में हम लाइन ऑफ कमांड नहीं फॉलो करते. कोई भी किसी से भी बात करता है, राइट? इनफॉर्मल है सब. सो दिस इज करेक्ट. सो ए शुड बी इन द आंसर. सो अगेन फोर्थ कैनॉट बी द आंसर. इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स एंड अलाउज देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. यानी कि क्या है, लोगों को सोशल होने के लिए अलाउ करता है इनफॉर्मल, कि मैं जाके किसी और टीम मेंबर से बात कर सकता हूं. ठीक है, मैं जाके किसी और दूसरी टीम से भी बात कर सकता हूं, राइट? इनफॉर्मली जाके. सो यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो बी शुड बी इन द आंसर. सो यस, इट इज देयर. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल. एग्जैक्टली. तो फॉर्मल तो होगा ही होगा. फॉर्मल में जो भी कमियां थी, यानी कि सोशल होना फॉर्मल में नहीं अलाउड, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए इनफॉर्मल है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो सी शुड ऑल्सो बी इन द आंसर. सो ए बी डी कैनॉट बी द आंसर. So either 2 or 3 is the correct answer. Yes or no? Now D says unity of command is maintained through an established chain of command. No chain is followed here. No chain is followed here. So fourth cannot be in the answer. So hence option 2 is the correct answer. A, B, C only. So hence 27th answer is 2. Is it clear? So unity of command is not maintained in an informal organization. तो कैन यू सी, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं आपसे, और ये पूछते हैं कि इस कंसेप्ट के बारे में क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से सीयूईटी, सी से सीयूईटी, सी से कंसेप्ट्स, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 28. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर. ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था, उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, राइट? नाउ अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले सोचो कि क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है. ठीक है, मुझे बताओ, क्या सीधा ही ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप आ सकती है क्या?
सीधा आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है जी। ये कभी पहले आ सकता है? नहीं आ सकता। सो द आंसर कैन नॉट बिगिन विद सी, हमें पता है, तो henceforth तो आंसर नहीं हो सकता। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज, यानी ब्रोकर विल गो देन मतलब ब्रोकर इस चीज के बाद जाएगा। तो अगेन ये इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आंसर डी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो कहीं पे है भी नहीं। ठीक है, या तो आंसर ए से शुरू है या बी से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो आंसर ए से शुरू है या आंसर बी से शुरू है। देखो ए बोल रहा है दैट द इन्वेस्टर साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। बताओ पहले क्या होता है? जब तक आप ब्रोकर से एग्रीमेंट ही साइन नहीं करोगे, आप डीमैट अकाउंट नहीं बनाओगे। पहले यू हैव टू साइन विद द ब्रोकर, ओनली देन यू विल क्रिएट द डीमैट अकाउंट। सो यस, द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम ए। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नाउ ए के बाद या तो बी आएगा या तो सी आएगा। तो चलो सी देखे पहले। सीधा क्या पहले ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दे देगा ब्रोकर? नहीं, जब तक डीमैट ही नहीं खोला तो कैसे दे देगा? सो द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी, ऑप्शन 1। तो देख सकते हो, पहले इन्वेस्टर ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करेगा, फिर इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, फिर एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी और ब्रोकर फिर फाइनली ऑनलाइन जाएगा मेन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन को टेक प्लेस करने के लिए। इज दैट क्लियर? 29, the market where existing securities are bought and sold। मैंने आपको बताया था that दो टाइप की मार्केट हमने पढ़ी थी कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो मार्केट होती है। अंडर द कैपिटल मार्केट हमने पढ़ी थी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जब कंपनी पहली बार इशू कर रही है, नए शेयर इशू कर रही है या पहली बार इशू कर रही है। सो न्यू शेयर्स बीइंग इशूड और first time issue, that is shown under the primary market, but this is saying existing securities की बहुत पहले से इश्यू हो रखे हैं, उसको बाय सेल हो रहा है, तो वो कहां होता है गाइस? कहां होता है? स्टॉक एक्सचेंज, that is the secondary market। so this was the easy one, 29 option B, secondary market। yes or no? so existing securities are traded in the secondary market, हमें पता है। ठीक है, now 30, now this is क्वेश्चन जो हमने बोर्ड्स में नहीं पढ़ा था, राइट? ये तो हमारा न्यू क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो दैट वाज अ डिलीटेड चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी नाउ। सो ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर था, चैप्टर 13। सो इनिशिएटिव ये पूछ रहा है। अब ये बहुत जनरल चीज है। एक एंटरप्रेन्योर है, यानी एक नया बिजनेसमैन है, उसको एक आइडिया आया, उसने रिस्क लिया, तो उसकी कौन सी एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल क्वालिटी नहीं होगी? इनिशिएटिव वो लेता होगा, ऑफ कोर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंट वो होगा, रिस्क अवॉइडर होगा। क्या आपको कोई बिजनेस में आना है, कुछ नया खोलना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क हम बोलते हैं, यानी हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। सो रिस्क इज इंपॉर्टेंट। सो इट डज नॉट इंक्लूड रिस्क अवॉइडर, इट एक्चुअली इंक्लूड्स रिस्क taker, because risk taking is the ability of the entrepreneur, that is a skill of the entrepreneur। so entrepreneurs are risk takers, not risk avoiders। is that clear? 30 question 31, identify the function performed by the SEBI। SEBI ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया है? इट कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर बिड्स एंड इम्पोजेस पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस। यानी कि अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सो दिस इज विच फंक्शन गाइस? दिस इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। यानी कि द SEBI इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर्स, राइट? जो भी SEBI में ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर वह इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, बिड्स टेक ओवर हुई, तो इसके लिए पेनल्टीज लगाई जाएंगी SEBI के द्वारा। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द SEBI। yes or no? is that clear? 32, financial management aims at choosing the best investment and the financial alternative by focusing on their cost and benefits। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव, मतलब ये तो इतनी ज्यादा बार पढ़ा है हमने क्लास में, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, बार बार। तो डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, तो इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। 32 ऑप्शन 1, इजी था। ठीक है, 33, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स requirements and their availability is sought to be achieved by dash। यानी मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट विद देयर एबिलिटी,
तो ये क्या कर रहे हो, आप एक फाइनेंशियल प्लान बना रहे हो। हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़ा था दैट वी प्लान अबाउट व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ फंड्स at the right time from the right sources. So that is your financial planning. So it will help you in the proper matching of funds with their availability. ये होगा कैसे, अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे. So hence financial planning is the correct answer. So 33 option 1. 33 option 1. Correct. 34. Debt is dash, but is more dash for a business because the payment of interest and the return of principal is obligatory for the business. क्या डेट चीपर है बट इज मोर सेफ? क्या डेट सेफ होता है रिस्की? मुझे बता दो. डेट ज्यादा रिस्की है क्योंकि डेट क्या है, उधार ले रहे हो आप. जब आप उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो वो रिस्की होता है. तो पहली चीज हमें पता है कि यहां तो रिस्की आएगा. ठीक है, यहाँ रिस्की, यहाँ सेफ लिखा है, तो दिस कैनॉट बी द आंसर. हमें पता चल गया 50-50, तो यही एलिमिनेट. ठीक है, लाइफ लाइन यूज हो गई. ठीक है, नाउ इज दैट चीपर और इज दैट एक्सपेंसिव? दैट इज वेरी चीपर बिकॉज आपकी कुछ फालतू फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दे रहे हो, सीधा आप लोन ले रहे हो. लोन लेने का क्या पैसा, लोन देते टाइम रिस्क हो सकती है, बट लोन पैसा ले रहे हो तो इट इज चीपर एंड इट इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल ऑल्सो. सो डेट इज चीपर बट इट इज रिस्की. ओके, सो 34 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. 35 कोऑर्डिनेशन. क्या बोल रहे हैं हम? कोऑर्डिनेशन unifies unrelated interest into purposeful work activity. Identify the nature of coordination. क्या करना है हमें? नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, यानी कि सबके अनरिलेटेड इंटरेस्ट है उसको एक साथ लेके आ रहे हैं एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में. सो इट इज ऑल परवेसिव, यानी कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ऐसा कुछ तो बोला ही नहीं. कोऑर्डिनेशन बार बार हो रहा है ऐसा भी नहीं बोला, तो कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता. इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मे बी पॉसिबल. यूनिटी तो कुछ लग रहा है. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. तो दीज टू यू कैन थिंक दैट सर सही लग रहे हैं, राइट? अब ध्यान से देखना. इट यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटीज, यानी कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, उन सबको साथ ला रहे हैं, यानी कि इट इज इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट्स. दैट इज व्हाई इट इज अ बेस्ट सूटेड आंसर, द फोर्थ. थर्ड इज टेक्निकल, यू कैन नॉट से अवॉइड की बिल्कुल ही गलत है, सही है, बट वी ऑलवेज हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, राइट? अगर यूनिटी ऑफ एक्शन होता तो उसका मतलब अलग हो जाता. सिर्फ यूनिफाई वर्ड से आप ये नहीं बोल सकते यूनिटी ऑफ एक्शन है, तो ये वाली गलती नहीं करनी है. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमें 2 बार पढ़ने ऑप्शन अगर हमें डाउट लग रहा है. 36 केस स्टडी. Akash Industries has installed a waste recycling plant in its premises and does not dump their waste material anymore. The plant is providing employment to many people. यानी कि क्या हो रहा है? वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट ओपन करा है, राइट? तो मतलब सीधा मतलब बिना देखे बता सकते हो आप कि सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही होगी. यहाँ आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. भाई वेस्ट रिसाइकलिंग मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब आप सोसाइटी की सोच रहे हो कि हमें सोसाइटी में हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है, हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना है. So identify the objective of the management which the company is achieving. So social objective is the right answer. क्योंकि ये पर्सनल और इकोनॉमिक तो हो ही नहीं सकता. Yes or no? So I hope up till 36 everything is damn clear. ठीक है? 37. Management always works by keeping an end result or aim of the organization. All activities of managers are directed towards the end results. From the above statement, identify the feature of management. Now पूछ रहा है कि इनमें से इस लाइन के हिसाब से आप कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैनेजमेंट हमेशा ये ध्यान करते हुए होता है कि मेन रिजल्ट और एम अचीव हो जाए, और ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एंड गोल. तो मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशन है, नहीं बात करी. मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, नहीं बात करी. मैनेजमेंट कंटिन्यूस है, इसकी बात भी नहीं करी. तो ऑफ कोर्स द आंसर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि हर टाइम हम गोल अचीव करने की बात कर रहे हैं. सो 37 इज ऑप्शन 4. ओके, 38.
द की पोजिशन ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज। तो हमने जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव 3 लेवल्स, द टॉप, द मिड एंड द ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी, राइट। यहां पे टॉप में कौन कौन आता है मैंने आपको बताया था, सीईओ, सीएफओ, सीओ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि द मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गए। मिड में कौन आते थे, हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स। सुपरवाइजरी में हमारा फोरमैन आता था, राइट। सो यहां पे हम बोल रहे हैं टॉप मैनेजर्स के बारे में। तो क्या मार्केटिंग मैनेजर टॉप लेवल में आएगा? नहीं। प्लांट सुपरवाइजर नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, ये सब मिड और ऑपरेशनल है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो 38 इज 1, इजी है बहुत। सो इफ यू हैव studied the basic of the levels of management, you could have just seen it and you would have replied that yes, 1 is the correct answer. 39, match list 1 to list 2. So we have to match. Now this was a good question, I was impressed, right? यहाँ पे क्योंकि इन्होंने सिलेक्शन टेस्ट के जो फर्दर टाइप से यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, वहां से क्वेश्चन पूछा था। सो दैट वाज अ गुड वन, राइट। एंड इन दैट ईयर एज आई सेड ऑप्शंस थे कि आपको 50 में से 40 ही करने हैं। सो दैट वाज, बच्चे छोड़ के आ गए थे कि रिस्क क्यों लेना, राइट। बट नाउ द रिस्क इज मोर बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, देयर आर नो ऑप्शंस, राइट। नाउ खुद सोचो, पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, चारों में से आपको क्या लग रहा है कि मैं कर सकता हूं या मैं लॉजिक लगा सकता हूं? पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होगा आपके हिसाब से इनमें से? जल्दी बताओ। पर्सनैलिटी मतलब पर्सन का इमोशन कैसा है, राइट। पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, वो उसके वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, राइट। तो पर्सनैलिटी में तो सी का तो 2 होगा, हमें पता है। तो C2 कहाँ है? देखो एक ही ऑप्शन में, उसी से आंसर हो गया। तो दैट इज हाउ यू कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस एज वेल समटाइम्स, राइट। तो एक देख सकते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेटर ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी, राइट, B1 हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट इज इंडिकेटर ऑफ पर्सनस कैपेसिटी टू डेवलप। ट्रेड टेस्ट इज योर measures existing skills of the individual, very important. ट्रेड टेस्ट मतलब एग्जिस्टिंग में आपकी क्या स्किल्स हैं अभी, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन 40, which of the following are the advantages of the functional structure of an organization? So ऑर्गेनाइजिंग में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे, द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, डिविजनल यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स, यानी कि डिविजन्स इन द सेंस नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसके अंदर सेपरेट फंक्शंस होते थे। तो फंक्शंस वर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, हमें पता था, यस और नो। तो उसके बारे में क्या क्या सही? फंक्शनल स्ट्रक्चर से ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, यस और नो? होती है कि अगर इफ यू आर फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग फंक्शन तो आपको अपने उसकी स्पेशलाइजेशन मिलेगी ही। सो यस, इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन, इट इज ट्रू। सो ए आंसर में होना चाहिए। सो फोर्थ कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज यहां पे ए है ही नहीं, यस और नो? बी, प्लेसेस लेस एम्फोसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमेशा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। सो यू कैन नॉट से दैट इट प्लेसेस less emphasis on the organizational objective. So B cannot be in the answer, hence 2 is wrong, hence 1 is wrong. So 3 is the correct answer. A, C and D. Promotes coordination, exactly. Increases operational efficiency, exactly. So A, C and D is the correct answer. So सब options का खेल है बाबू भैया, आपको याद रखना है। So 40 questions हो गए हमारे, 10 more are left. Okay. Okay. Now 41 is one of my favorite case studies ever. Okay, क्योंकि नाम ही इतना अच्छा है, Just Foodie. क्या नाम है? Just Foodie is a food chain offering different snacks like chips, biscuits, choco chip, cookies, cakes. I'm hungry, guys. Through their own retail outlets to make their products available at the right time, right place. They are also selling their products to grocery stores in addition to their own outlets. Now, whatever you think that it can be a key line, उसको underline कर दो। हमें पता चला कि products available करने की कोशिश कर रहे हो। The taste, quality and packing are given utmost care. So they are also focusing on the packaging. They are offering good quality. So they are able to charge higher prices. So because of quality, they can charge high prices as well. To increase their sales, they are using different tools. They are giving free gifts, cashbacks. They are using some methods as well. समझ आ रहा है? They are offering discount to customers on various occasions.
All these considerations have made Just Foodie a complete success. तो हमें पता है मार्केटिंग मिक्स की ही कुछ बात हो रही है और सक्सेसफुल हो रही है. In the above case, Just Foodie is using various variables of marketing mix. Identify the variable used in the following statement. इस statement में कौन सा marketing mix यूज हुई है, 4 P's में से कौन सा P यूज हुआ है. क्या है स्टेटमेंट? To make the products available at the right time, right place, they are also selling their products to grocery stores. यानी कि making the product available at the right place at the right time. यानी कि place is also known as the physical distribution. So we are talking about the physical distribution of the product, that the product reaches on time to the consumers, right? तो यहाँ पे आप बोलोगे that physical distribution / place is the correct answer. Yes or no? So place or physical distribution is the correct answer here. Yes or no? Second, identify the element of marketing mix. The taste, the quality and packing are given utmost care. यानी कि we are focusing on the taste, we are focusing on the quality, we are focusing on the packaging. So we are focusing on the product a lot. So we are focusing on the product, right? So product mix is the right answer for 42. Yes or no? So 41 हमने देख लिया physical distribution, 42 हमने देख लिया product mix. 43. They are able to charge higher prices than their competitors. Which element? तो अगर वो प्राइस की डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ देयर गुड क्वालिटी दे आर एबल टू चार्ज हायर प्राइसेस, अगर हम कुछ अच्छा सामान दे रहे हैं उस वजह से हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट द प्राइस एलिमेंट, दैट इज द प्राइस मिक्स. यस और नो? यस. 44. To increase their sales, they are using different offers like the free gifts, cashbacks. So they are offering discount to customers on various occasions. Identify the marketing mix element. तो यहाँ पे कौन सी किस चीज की बात हो रही है? हम ऑफर दे रहे हैं. हम ऑफर क्यों दे रहे हैं? Because we want to promote our product. We want its sales to get increased. So that's why we are offering cashbacks. We are giving free gifts. So that is the reason. So we are promoting the product. Hence, we are talking about the promotion mix. So question number 44. Answer is 3. That is the promotion mix. Is that clear? For sure. ठीक है? So that is what? That is the promotion mix. One more. $45. To increase their sales, they are using different offers. अब आप बोलोगे सर ये तो रिपीट हो गया है ना, यहां भी यही था. To increase their sales. अब in these type of questions you don't have to assume that it is same. Just read till the end. You will get the difference. तो आप यहाँ पे देखोगे free gifts, cashback, they are offering discount to customers on various occasions. यहाँ तक बिल्कुल सही है. In the above questions, it was asking identify the marketing mix element. Now it is asking which tool of promotion mix is used. So we knew that. अब यहाँ पे तो आंसर ही आ गया. तो अगर आप पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखते तो आप समझ जाते ऊपर वाले का आंसर प्रमोशन, अगर आपको डाउट था. ठीक है, देख रहे हो. बट अब वो पूछ रहे हैं कि प्रमोशन मिक्स भी हमने पढ़ा था, 4 चीजें प्रमोशन में. याद आ रहा है? डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, राइट, एडवर्टाइजिंग. तो वो पूछ रहा है पब्लिक रिलेशन. उनमें से कौन सा टूल यूज हुआ है इस जगह पे? जब हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, हम कैशबैक दे रहे हैं, तो हम जब इंस्टेंट परचेज करवाना चाहते हैं तो हम डिस्काउंट, फ्री, कैशबैक ये सब देते हैं क्योंकि हमें सेल अभी प्रमोट करानी है. सो हेंस वी आर यूजिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक ऑफ द प्रमोशन मिक्स. क्योंकि खुद सोचो, आर वी पब्लिसिटी कर रहे हैं? नहीं. क्या हम एड दे रहे हैं? नहीं. क्या हम घर घर जाके बेच रहे हैं? नहीं. सो दीज 3 कैन नॉट बी द आंसर. You can do it in both the ways. So that was 45. 5 more questions from the 2024 paper. 46. Okay. Another case study. Next 5 questions. यानी कि लास्ट में 2 केस स्टडीज थी बड़ी, उसको हम सॉल्व करने वाले. इंडियन ऑयल इज द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज टॉप रैंक्ड. मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है. इंडियन ऑयल विजन इज ड्रिवन. इंडियन ऑयल की तारीफ है. ओवर 34,000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स. चलो वर्कफोर्स के बारे में कुछ कह रहा है, क्या पता कुछ हो. इंडियन ऑयल हैज बीन हेल्पिंग टू मीट इंडियाज एनर्जी डिमांड्स. ओके. इट प्लान्स टू इंक्रीज इट्स बिजनेस ऑपरेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. द कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट 20,000 crore and plans to expand overseas. The company is always believed to be ahead of the demand
Last year too, the Indian Oil Company had invested close to 22,000 crore, including 60,000 crore in various Indian projects and on acquisition of upstream in Russia. यानी कि IOC तो बहुत पैसा है और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर रहा है. The company believed that if the goals are well defined, employees are aware of this line can be important. कंपनी को लगता है कि अगर गोल अच्छे से डिफाइंड है, एम्प्लॉयज अवेयर हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए एंड व्हाट एवरीवन मस्ट डू टू अचीव द गोल्स. ठीक है. इसके बाद कहता है चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड. ओ सच्चा इंपॉर्टेंट लाइन. दैट चेंज को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट एंटिसिपेट तो कर सकते हैं. तो पॉलिसी फॉर्मेशन सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Manager can look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. यहाँ लास्ट लाइन पढ़ते ही यकीन हो गया कि कुछ प्लानिंग की बात हो रही. मुझे तो यही हो गया था कि हम फ्यूचर के इवेंट्स एलिमिनेट नहीं कर सकते पर उसके लिए रेडी हो सकते हैं. ये भी हमने प्लानिंग करते टाइम पढ़ा था. और यहाँ पे सीधा बोल दिया दे हैव टू सिलेक्ट अमंग्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. राइट. तो 46 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड. तो लास्ट लाइन से और उसके ऊपर वाली लाइन से हमें पता चला दैट वी आर फोकसिंग ऑन द प्लानिंग, दैट हाउ वेल आर वी प्लानिंग. हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, हम फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग. 47. If the goals are well defined, employees are aware what they must do, identify the significance of managerial function highlighted. यानी कि प्लानिंग की कौन सी सिग्निफिकेंस की बात हो रही है कि अगर गोल वेल डिफाइन है, एम्प्लॉयज अवेयर हैं तो गोल्स अचीव हो जाएंगे. सो फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग हो सकता है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज हो सकता है, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कोई अनसर्टेनिटी की बात नहीं हो रही इस लाइन में. चलो 3 में कंफ्यूज है अभी हम. प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अगर गोल अच्छे से डिफाइन है, एम्प्लॉयज अवेयर हैं व्हाट दे मस्ट डू टू अचीव देयर गोल्स, राइट? व्हाट दे मस्ट डू, सो इट मींस दे आर गिवन अ डायरेक्शन व्हाट दे मस्ट डू. सो हेंस इस वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन. सो ऐसे दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो. सो दैट्स व्हाई here you have to read the line again and again and you have to connect with the option कि ये option better जा रहा है इसके साथ, right? तो in case studies sometimes this will happen which is normal. सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ होगा. But the main point is आप पैनिक ना करो, 2 बार पढ़ो और समझ के करो. ठीक है. 3 more questions. 48. Changes or events cannot be eliminated but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. Identify the significance of managerial function highlighted in this statement. कि चेंजेस और इवेंट्स एलिमिनेट नहीं हो सकते पर वो एंटिसिपेट हो सकते हैं. अब यहां पे कौन सी सिग्निफिकेंस की बात हुई? चेंजेस एलिमिनेट नहीं हो सकते पर एंटिसिपेट हो सकते हैं. यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कि थोड़ी सी हम कम कर देते हैं रिस्क. ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज अनसर्टेन बट एटलीस्ट वी आर एटलीस्ट सेफ बिकॉज वी हैव एटलीस्ट प्लान्ड. So hence reduces risk of uncertainty. 48. 2 more questions. Policy formation serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Identify the significance of managerial function. ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? क्या हो रहा है? It helps in avoiding confusion and misunderstanding. यानी कि कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होगी, वेस्टफुल एक्टिविटीज होंगी, राइट? तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको हटा रहे हैं थ्रू प्लानिंग, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. सो हेंस 49 reduces overlapping and wasteful activities. So finally we are here at the last question of the 2024 paper. Very good paper for practice this was, right? Good case studies, good good your match the following questions, good one. I like the paper. Manager can look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. यानी कि बहुत सारे courses of action में से मैनेजर डिसाइड कर सकता है. इसका मतलब मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है. So we are focusing on that it facilitates the decision making. Hence 50 is option 4. So we are done with the 2024 paper.
इफ यू आर वेरी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम. एवरीथिंग क्लियर? गुड टू नो. नाउ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ. कोई क्वेश्चन में फंसो, पैनिक मत करना, आगे बढ़ना, आगे के क्वेश्चंस करो. जो नहीं आ रहा है समझ, लास्ट के लिए छोड़ दो. जो होते जा रहा है स्टार्टिंग में वो करते जाना. एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, पेपर अच्छा जाएगा. राइट, योर पेपर विल गो वेल. एंड यस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस. यू गाइस कीप ऑन स्टडिंग लाइक दिस. ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो. आई एम राहुल गुजराल. विल मीट यू विद another paper discussion of course. So till then, bye bye. जय हिंद एंड टेक केयर. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.